these cases, and sometimes connections are made directly with an individual through these Facebook IDs. Notable IDs that were used in this operation were named Laiba must be King, United must be Story, and Azad must be Ilm, etc. A girl using name Iman operated some of these IDs for a long time. In some cases, she presented herself as a married woman whose husband was overseas and claimed to live alone in Islamabad. Facebook friendships with her transitioned to WhatsApp, followed by texting, and finally voice and video calls. Eventually, she would invite them to visit her in Islamabad either for a romantic connection or simply offering to arrange their interviews for jobs in reputed companies. Some victims, having built trust through these video calls, would agree to share objectionable content online in a desire to meet her. In most cases, victims never saw Iman in person. In some cases, nude pictures with names of the religious figures or Quranic verses written on them would be sent to the victims either directly or in a WhatsApp group. When the recipient discovered the inappropriate content and protested, the sender would deny having sent anything of the sort, making some excuse, and then the recipient would then be asked to show the content to the sender. To get the bottom of the issue, the recipient would send the same picture back to the sender. At this point, the sender would block the recipient and disappear. After some time, the recipient would be arrested by a team from the cybercrime wing and would be accused of being the originator of the blasphemous content. In other cases, after some times of the friendship with Iman or some other girl, there were direct demands to share blasphemous content. Certain WhatsApp groups were specifically designed for sharing pornography. There are escalating requests for specific categories of porn. This would follow a request of sharing pornographic content with religious themes. If someone refused, they would be coerced or pressured into complying. It is evident through the trapping techniques of the blasphemy business group. Youngsters can be easily manipulated. However, the real culprits are those orchestrating these traps and creating such content. None of these individuals have ever been arrested by the FIA. Once a youngster was trapped using any of these methods, a member of the blasphemy business group would file a complaint against the material shared online, and FIA cybercrime wing would arrest the new target. This appears to be sole objective of the FIA's collaboration with the blasphemy business group. Now, my lord, the connection between the girls used to trap and blasphemy business group. The girls who used to connect with youngsters on social media groups and later trap them into sharing blasphemous content were in contact with the blasphemy business group through Shehzad Khan. Shehzad Khan is what is the basis for this statement? These, according to the owner of the Fact Focus and editor of this report, they contacted the member of the blasphemy business group, alleged member of the blasphemy business group, and वो आगे उनके वर्शंस आएंगे और उनसे पूछा गया कि ये चीज़ें आपके ख़िलाफ़ हैं, क्या आप इन चीज़ों को डिनाई करते हैं या आप इनको रद्द करते हैं या नहीं। वो मैं आगे जनाब के सामने रखूँगा। नहीं, मेरा सवाल और था उस्मान साहब, एक बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया गया है कि द गर्ल्स हु यूज्ड टू कनेक्ट विद यंगस्टर्स on social media groups and later trapped them into sharing blasphemous content were in contact with the blasphemy business group through Shehzad Khan. Sir, this is a very categorical statement. Sir, I am only asking you, is there anything that you or your colleagues have come up while reviewing the cases where you say that this statement has some basis? My lord, जो
इंडिविजुअल केसेस हैं और उनमें अगर कोई एविडेंस आई है या उनका क्रॉस आया है या कोई चालान की सूरत में चीज़ आई है या टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट की सूरत में आई है या दीगर एविडेंस के तौर पे आई है, तो इन्हीं चीज़ों की बाबत तो हम अदालत से ये इस्तदा कर रहे हैं कि इन एलिगेशंस के ऊपर, इन रिपोर्ट्स के ऊपर, इनमें जो हॉरिफिक रेवलेशंस हैं इनके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकी बहुत सा मटेरियल मैं जनाब के सामने रख सकता हूँ। मुझे एक तो प्लीज़ ये ओरिजिनल, मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे डॉक्यूमेंट्स दें। माय लॉर्ड, वो मैंने सॉफ्ट कॉपी में ये रिपोर्ट जो है, नहीं सॉफ्ट कॉपी किधर, मुझे दिखाए ना ज़रा। ये अब उसकी एक्सप्लेनेशन वो अगले पैराग्राफ में दे रहा है जो मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे पास लिखा नहीं हुआ। मैं इसको माय लॉर्ड जो करेक्टेड वर्जन है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। इसको हम फिलहाल अगला पैराग्राफ पढ़े ना सर, जो नेक्स्ट पेज पे शुरू होता है, वो करेक्टेड वर्जन आप पहले इनको दे दें। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, इट्स ऑल ओब्लिटरेटेड है। सर ये ओवरलैप हो गया किसी डॉक्यूमेंट की वजह से आ गया। ये पढ़िए, मैं उससे आगे चलता हूँ जी। Rao in the response to the facts focus said that Shehzad is clerk in his office. He said he was unaware of any contact with any girl like Iman. कि ईमान का शहजाद के साथ कोई कांटेक्ट है या नहीं है। आती है उस्मान साहब, मैं ये समझ गया हूँ सर। डायरेक्ट connection and joint actions by FIA cybercrime wing and blasphemy business group. ना 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 ना, जो टॉप का पैराग्राफ है इस पेज के ऊपर वो पढ़ के बताएंगे। ये आपके पास भी? मेरे पास भी नहीं है सर। सॉफ्ट कॉपी से पढ़ के सुना। एनी लैपटॉप्स है? Do you have it? Today the FIA officer is not here. सर जब स्पेसिफिक स्टांस लिया जा रहा था इन केसेस में कि कोई एक से ज़्यादा खातून है और उनके मोबाइल नंबर्स की कॉल्स जो हैं वो ट्रेस हो रही हैं बैक टू दिस बिजनेस ग्रुप, सो कॉल्ड बिजनेस ग्रुप, तो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया FIA ने? इसमें लॉर्डशिप लास्ट टाइम इन्होंने कहा था 5 केस हम देते हैं, उसकी हम जो है ना ब्रेकअप करते हैं, क्योंकि 348 केस है पूरे पाकिस्तान में सर। कुछ लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में। तो उस वक्त तो मैं सर एडिशनल डायरेक्टर लीगल हूँ सर। तो जो IOs हैं हम सर, जो केसेस हैं उसके बारे में तो वही बता सकेंगे ना सर सारे सर। पायलट मैंने अपने कंपेंडियम में 12 केसेस दिए हैं जो मैंने कोर्ट को आप दें लिस्ट हमें सर, हम उसका ब्रेकअप और उसको चेक करते हैं और उसका रिकॉर्ड हम सर हर चीज़ दे देते हैं उन IOs से सर। एक केस अभी तक हमारे सामने ये आया है सर, स्पेन का नंबर है सर, बाय सम फॉर्चुनेटस मैचिंग वो पाकिस्तान आ जाता है और वो राव साहब के पास फ़ोन नंबर पहुंच जाता है। यस सर। और लेकिन उससे जो एक्यूज निकलता है वो उस नंबर से एक खातून उसको कॉल करती रही और FIA के ऑफिसर साहब ने जब मैंने पूछा कि आपने इसको मुनासिब भी समझा, उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं थी, हमने उनसे पूछा आप नंबर, उन्होंने कहा हमारा नंबर। लेकिन इस साल को उन्होंने नहीं पूछा थी वो खातून कैसे, आप इस नंबर से खातून कैसे आ गई, उन्होंने कह दिया जी तो मैंने FIA को दे दिया। वो चीज़ सर मैं NCA के उसमें लाया हूँ, उसकी फाइलें हमने हेडक्वार्टर में मंगवा ली सर, तो वो उसका हम ब्रेकअप देंगे सर। 2 IO थे उसके सर, उस केस सर मुझे नहीं देंगे सर, अपने तौर पर चेक करते हैं सर उसको FIA। अच्छा उनका जवाब बड़ा सादा सा था कि जी मैंने इसकी ज़रूरत नहीं महसूस सर, विच इज़ वेरी सरप्राइज। आज जो बाकी चीज़ें पढ़ रहे हैं हमारे सामने, उसमें एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट वो दे रहा है कि जी जो ख़वातीन थी सर, जो इनमें से कुछ के साथ राब्ते में थी और ये क्लेम करते हैं कि हमें हनी ट्रैप किया गया है, वो राब्ते में थी विद शहजाद खान।
जो कि इनका मेंबर। इस राब्ते को इन्वेस्टिगेट किया FIA ने फोरेंसिक बेसिस के ऊपर कि कब से राब्ते में थी, कितनी फ्रीक्वेंट राब्ते में थी, और क्या इन लोगों से FIA ने इनके बयानात लिए कि जी ये ट्रायंगल क्यों बन रहा है कि खातून, आप और एक्यूज्ड। इसकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ उनसे लेनी थी, इसकी क्या, और लेकिन उनकी बातों से नज़र आया कि उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन लेना ज़रूरी। नहीं समझा सर वो जो सलमान अवान हमारा डिप्टेटर था वो पिंडी का था सर, उसने 20-25 केस किए हैं सर, 348 केस हैं, डिफरेंट आईओज हैं सर। इसमें तो ये पिन पॉइंट इन्होंने 12 या 5 केस किए हैं सर। मैं एज ए लीगल हम उसको सर हेडक्वार्टर में देख के हम देख लेते हैं उनमें सर, जो भी मसला हुआ हम देख लेते हैं सर। 22 के 23 के 21 19 से सर केस है मेरे पास, जो डेटा है 19 से केस आ रहे हैं सर अब तक सर ना, मुख्तलिफ आईओज हैं सर उसमें ना। नेचुरली एक बंदा तो नहीं जवाब देगा सर, एक बंदे ने 20 किए हैं, 348 का तो जवाब नहीं दे सकता सर वो। नेचुरली उसमें सर हमें आप ये पिन पॉइंट कर दें कि ये केस हैं, उनकी फाइलें हम हेडक्वार्टर में कमेटी बना के हम चेक कर लेते हैं सर। उस वक्त किसकी गलती थी सर? अब प्रॉब्लम खड़ी होगी है ना सर, देखिए ना, प्रॉब्लम ये खड़ी होगी है कि इस बात को मुकम्मल रद्द नहीं किया जा सकता 100% कि FIA के अंदर से कुछ एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं। अब वो एक केस है, 2 केस हैं, 10 केस हैं, 25 हैं, हमें नहीं मालूम। तो इसको कैसे श्योर किया जा सकता है कि without this not being in the domain of FIA but some other agency or a commission, as they are saying, investigating this point, कि जी क्या इसमें मिस इन्वेस्टिगेशन हुई है या जो लीड्स थी उनको जानबूझ के उनसे पर्दापोशी की गई है, दूसरी तरफ देखा गया है। ये कैन वी with 100% confidence say कि जी FIA is the organization to carry out this exercise, जबकि आपके अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो कि हो सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। आप अपनी तरफ से ज़रूर देखिए, आप अपनी तसल्ली तशफ़ी ज़रूर कीजिए, बट अ रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय FIA as a consequence I don't think would be as convincing as it would have been sir if there weren't more than one allegations of your some people in your organization willing to look the other way. yes ये बात तो आप ज़रूर देखिए, आप तशरीफ़ रखिए सर। थैंक यू सर विद अपॉलोजी, वो सॉफ्ट में भी अवेलेबल नहीं है और जो ऑनलाइन अवेलेबल है दैट इज़ बैंड, वो VPN के साथ ऑपरेट करना पड़ती है। तो मैंने मंगवाई है, एज सुन एज आई रिसीव मैं जनाब के सामने रखता हूँ, मीनवाइल मैं आगे कोर्ट को असिस्ट करता हूँ सर। उसमें वही जनाब का जो सवाल है कि कैसे उनका कनेक्शन जो है क्लर्क का और हनी ट्रैपिंग गर्ल का इस्टेब्लिश होता है, वही 3 लाइन हैं, वो जो ही आता है मैं जनाब के सामने रखता हूँ। उसके आगे सर, Rao in his response to Fact Focus said that Shehzad is a clerk in the office. He said he was unaware of any of contact with any girl like Iman. Next, ये रिपोर्ट कहती है सर कि direct connection and joint actions by the FIA, Cybercrime Wing and Blasphemy Business Group. The Blasphemy Business Group members and the FIA Cybercrime Wing in Lahore, Islamabad, Rawalpindi operate in connivance with each other. There are many instances to establish in this fact. In case FIR number 138 of 23, according to the written statement of the victim, he was abducted by आगे उनका नाम है वकील साहब का, and his accomplices, and was then taken to FIA Cyber Crimes Wing where the victim was formally arrested.
Similarly, in the case FIR number इसमें 8, क्या हुआ था राव साहब? FIR नंबर 138 ऑफ 23 में आप लेके गए थे अक्यूज्ड को FIA के दफ्तर में? जी और ये FIR नंबर 138 ऑफ 2023, इसमें आप एक्यूज्ड को लेके गए थे और FIA के सामने पेश। मैं आपसे ये पूछा कि ये हकीकत FIA क्यों लेगी सर? ये हकीकत नहीं है, आप नहीं लेके गए ये आप अगर रिकॉर्ड मुझे कहेंगे, मैं रिकॉर्ड बल्कि FIA को कहें, FIA मौजूद है, रिकॉर्ड आ जाए सर। नहीं, देखिए ना इसमें तो कोई रिकॉर्ड, देखिए ना इसमें तो कोई रिकॉर्ड नहीं होएगा ना राव साहब, क्योंकि FIA ने तो या तो मुझे पूरा इस पे जब मेरी बारी आएगी सर तो पूरा इस पे ब्रीफ कर लेंगे। मैंने आपसे एक लाइटर नोट में पूछा कि क्या आप इसमें उसको लेके गए थे? नहीं, आपने कहा नहीं, आपने कहा नहीं लेके गया। तशरीफ sir. Similarly, in the case FIR number 85 of 23, the accused first arrived at a location in sector G8 in Islamabad used by this person and his team members. The accused received a call from the girl Iman at 1:31 p.m. July 22nd, 2023. She told the victim that her driver will pick him up. The driver, who in fact was the Blasphemy Business Group member, another name of the member of the group, जो ड्राइवर बन के आया सर, called the accused person at 10:42 p.m. using his cell number such and such and took him to the location in sector G8. Analysis of the mobile location history data by the experts confirmed the presence of accused at this location on July 22nd, 2023 and July 23, 2023 and July 23, 2023 was Sunday. However, the complaint was filed on a Sunday and FIA formally arrested the accused on the same day. The location history data indicates that the mobile phones remained at the same location even after the arrest was made and the accused taken to a different location. The Blasphemy Business Group handed the mobile to the FIA Cybercrime Wing later on. The technical and evidence establish how closely the Blasphemy Business Group and FIA Cybercrime Wing were operating. In 3 different cases, the families of the victims state that when their family member were arrested and taken into FIA office, Rao Abdurrahim, again का फिर नाम आ गया, was already present there. ये उनके family member कहते हैं जी. In its public announcement on X, the Blasphemy Business Group claimed that it is working hard for regularization of the several contract-based staff appointments in the cybercrime wing of the FIA. आगे उन्होंने जो इनको अपना पम्फलेट अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर किया, ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप ने, लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान ने उसका स्क्रीनशॉट लगाया है कि दे आर स्ट्राइविंग हार्ड फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ द FIA staff. After that, my lord, in another case, FIR number 52 of 24, a CCTV video evidence shows that Shehzad Khan, the closest associate of Vakil Saab and a complainant in case against multiple individuals, is himself arresting accused individuals along with the cybercrimes wings of the FIA at local petrol pump in Nankana Sahib, Punjab. ये FIR नंबर 52 है, 52 ऑफ द 24 है। ये कहाँ से है? CCTV फुटेज कहाँ है सर? इसकी CCTV फुटेज जो मुख्तलिफ रिकॉर्ड में और गालिबन इस ट्रायल में भी पेश की गई है, वो FIR भी मैं जनाब के सामने रख देता हूँ। Yes, please. I would like to see this. Yes, please.
the circle will show the victim coming out from the car and walking towards the camera. These are all private clothes. This person was not grabbing the phone and putting in his pocket is Shahzad. Where is Shahzad Khan? Or not this, Is he the present corner in of his court? leg. Is there any explanation as to why a private person was present at the arrest like this and grappling with him? And he's complaining in multiple FIRs himself. सर FIA प्लेन क्लोथ्स में भी ऑपरेट करती है सर? सर वैसे सर ये हमारा सर इंस्पेक्टर तक यूनिफॉर्म है, इंस्पेक्टर तक सर। हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर के पास यूनिफॉर्म नहीं होता सर। यहाँ हमारा इंचार्ज जो ब्लास्फेमी का डिप्टी डायरेक्टर होता है सर, बगैर यूनिफॉर्म के सर। आज भी नहीं है यूनिफॉर्म सर हमारा। सो वो प्लेन्स क्लोथ में ऐसे अरेस्ट कर सकते हैं? यस सर, क्योंकि AD और सर उसके साथ दूसरी फोर्स होती है, और जो AD है और DD है उसकी यूनिफॉर्म नहीं है सर, प्लेन क्लोथ में होते हैं सर। Why is that? Why is it an ununiformed? यूनिफॉर्म सर सिर्फ इंस्पेक्टर तक हमारा है सर, जो यूज़ करते हैं मोस्टली। ये क्या, इसकी क्या वजह? You are not a secret investigation agency. You are a federal investigation agency. यस। और अगर पुलिस में IG तक के लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं तो इसकी क्या वजह है कि आप नहीं पहनते? पहनना चाहिए। अभी सर NCC में हमने ऑल मेंबर्स कर दिए, IG से लेकर कांस्टेबल तक। अभी सर जो NCC हमारी ये बनी है न्यू एजेंसी सर, उसके रूल्स हम में तो बना है, लेकिन मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि इसकी क्या वजह है कि इंस्पेक्टर से ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, which is a an investigation agency, सर more sophisticated police if you like, it should not wear SOPs हैं सर जो FIA के ना, उसके मुताबिक तो इंस्पेक्टर सर तक आप है इसको सर। कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि एक अरेस्ट हो रहा है जिसमें आपका एक ऑफिसर अलॉन्ग विद 4-5 प्राइवेट पर्सन्स उसको पकड़ रहे हैं, उसके हाथ से फ़ोन जो गिरता है वो जो सो कॉल्ड ब्लास्फेमी गैंग का मेंबर है वो उठा के अपनी जेब में डाल देता है। वो बाद में पेश करेगा, हमें नहीं पता कि वो क्या उसका फोरेंसिक एनालिसिस। लेकिन ये गिरफ्तारी जो अमल में आई है, ये बड़ा साफ नज़र आ रहा है कि ये FIA ने अकेला ही शायद एक अफसर था, अगर था भी, लेकिन ये प्राइवेट लोगों ने उस शख्स को बुला के यहाँ पे गिरफ्तार किया। सर मैंने तो नहीं ये देखी, या हमारे तो नोटिस में नहीं आई अभी तक ना सर, इस पर नो कमेंट सर। केसेस एक भी एहलकार FIA का नहीं होता, और कुछ केसेस में तो जब ये अगवा हो जाते हैं विक्टिम्स, तो इनकी वहाँ पे अगवा का पर्चा भी हो जाता है लोकल थाने में। अगर ये अरेस्ट करने गए हैं और लोकल थाने में इंदराज कराया है कि हम आए गिरफ्तार करने। चटा साहब, आप एकदम से इतने सारे फैक्ट्स मुझे बता देते हैं चीज़ें, जिसकी कोई बेसिस मेरे पास इस फाइल में नहीं होती, और फिर मैं उसको प्रोवाइड करूंगा मेरे उस डॉक्यूमेंट्स इन माय ओन टर्न। इन योर ओन टर्न? अच्छा, अभी आपकी टर्न अलग, आपकी उस्मान साहब से अलग से टर्न आनी है। ये आप तब बताएंगे। Should I wait to take down these notes because these notes too need to be taken slowly? Should I wait for them or should I write it now? Why not? I think I'll give documents with them when All right. So you make a point of it that when you said कि उनके जाने के बाद अगवा का पर्चा होता है, फिर पता लगता है कि FIA में केस दर्ज हुआ है। सर तशरीफ सर My lord, page 38 of the petition, page 37 पे उन्होंने बात की है with regard to the corrupt practices of the
साइबर क्राइम विंग वो मैं पास ऑन करूँगा। इसके बाद सर पेज 38, हाउ ब्लास्फेमी ग्रुप प्रेशराइज लोअर एंड हाई कोर्ट्स। उसका तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया हो। सर according to the family members of the victims, various intimidation tactics are deployed during court मेरे proceedings. ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, we all know this। आगे चल। सर आगे फिर ये इसी तरह एक अदालत के अंदर एक FIA ऑफिशियल ने कोर्ट प्रोसीडिंग को डिस्क्रीटली, सीक्रेटली, इलीगली कंडक्ट को रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट इशू हुई कि उसका ऑर्डर उन्होंने नेक्स्ट किया हुआ है। चलिए आगे चलें। सर दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ द फैक्ट फोकस रिपोर्ट जो ये इस्टेब्लिश करती है कि देर इज़ अ नेक्सस बिटवीन द कंप्लेनेंट्स, देर इज़ अ नेक्सस बिटवीन द पीपल ऑफ द ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप हु आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड एक ही बंदे के इर्द गिर्द जाके वो सारी कहानी रुकती है। How do you answer the one of the respondents' counsel's argument that the fact focus report should not be looked at because it is what they call banned in Pakistan? My lord, and therefore the court should not be even looking at this document क्योंकि इसको PTA ने बैन किया। My lord, PTA ने उसको बैन किया है और उसके बैन का नोटिफिकेशन में क्या उसकी तोजी दी है, दैट इज़ इमटेरियल एंड इररेलेवेंट। व्हाट रेलेवेंट इज़ कि हमारे यहाँ तो एक्स जो फॉर्मरली ट्विटर है वो भी एक अरसा बैन रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया फोरम भी वही था और हुकूमती इदारे इस्तेमाल करते थे जिन्होंने उसको बैन किया हुआ था। वो VPN का इस्तेमाल करके एक्स को इस्तेमाल करते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उससे ट्वीट कर रहे होते थे, हमारे DGI SPR भी उससे ट्वीट कर रहे होते थे और बरमला कहते थे कि ये बैन है। तो उसकी बैन की तोजी पेश करना कि ये एक इन्वेस्टिगेटिव फोरम बैन है, दैट इज़ इमटेरियल सर। व्हाट वी हैव टू लुक इनटू इज़ कि क्या वो चीज़ें सामने लेके आया है और किन हकायक की जांच होनी चाहिए। Now my lord, kindly see CM 355 of 24। नहीं, अब ये फैक्चुअली करेक्ट बात है कि मैं अगर अपने ऑर्डर में लिख देता हूँ कि even the Prime Minister and the DG ISPR sir were using the a banned social media, were using X while using VPN to circumvent the official ban. this is factually correct sir, It's factually correct. very much correct sir। Where are we headed? Now my lord, kindly So see it was banned for ordinary people, but not banned for anyone who has access to those through VPNs through VPNs. sir। But hasn't it been the PTA's stance कि जी using a VPN to access a banned social media platform was itself illegal? So are you saying that while doing that, the PM and the DG ISPR and other very highly placed officials were knowingly committing an illegal act? Illegal act। And nonetheless, they did that hoping and believing that whatever their message was will reach its intended audience and will have the desired effect. क्योंकि my lord उस In that case, your argument is that therefore, even if fact focus is banned, if its message has reached its intended audience and has the potential of having the desired effect, the court should follow the example of our leaders. leaders Fine. An argument made. आगे चलिए. sir, kindly see the CM 355 of 24 which I have filed। CM नंबर। वैसे जिस तरीके से आप लोग इस अदालत को लेके चल रहे हैं, आप कमीशन के लिए क्या छोड़ेंगे? my lord, तमाम
कमीशन के लिए तमाम TORs तय करने के लिए कि किन नुकात के ऊपर कमीशन ने इंक्वायरी करनी है, ये तमाम शवाहिद, ये बातें, ये दलाइल सामने आना ज़रूरी है सर। अच्छा बताइए। जनाब के सामने है CM 355/24। ये जनाब मैंने फ़ाइल की थी और इसमें मैंने डिटेल दी है नंबर ऑफ़ कंप्लेनेंट्स और वो कितनी FIR में कंप्लेनेंट हैं और उन मुकदमात में कितने विक्टिम्स हैं। द फर्स्ट नेम शिराज अहमद फारूकी, हु इज़ कंप्लेनेंट इन 6 FIRs। आगे FIRs की डिटेल मौजूद है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, 3 रावलपिंडी में, 3 इस्लामाबाद में, और इन 6 मुकदमात में 14 विक्टिम्स हैं एज़ पर दैट टाइम्स रिकॉर्ड। फर्दर उसमें मज़ीद लोगों को इम्प्लिकेट किया गया है तो वो मेरे इल्म में नहीं है। नंबर 2 शहजाद खान, जिसका अभी जिक्र हो रहा था, वो 4 मुकदमात में कंप्लेनेंट है, 1 at Islamabad, 3 at Rawalpindi, and there are 11 victims in these 4 cases. ये वही शहजाद खान है जो कहते हैं वकील साहब के ये मेरा क्लर्क है। देन उमर नवाज, ये यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, बाद में मुझे बताया गया ये 5 मुकदमात में कंप्लेनेंट हैं और इसमें 3 मुकदमात इस्लामाबाद, 1 रावलपिंडी में है और 9 लोग इसके विक्टिम हैं। देन मोहम्मद आसिम, 3 FIRs कंप्लेनेंट, 2 इस्लामाबाद, 1 रावलपिंडी और 8 विक्टिम्स। इसी तरह मोहम्मद सईद गनी 3 मुकदमात में, हसनात फ़ारूक 3 मुकदमात में, अब्दुल्ला सुल्तान 3 मुकदमात में, और इसके आगे वो सारी डिटेल है जो लोग 2-2 और 1-1 मुकदमात में हैं। इसी CM का माय लॉर्ड पेज आप 3 देखेंगे जिनमें लाहौर के केसेस की समरी है। नुमान यूसुफ 6 मुकदमात में कंप्लेनेंट हैं जिसके 26 विक्टिम्स हैं। उन 6 मुकदमात में 26 विक्टिम्स हैं जिसकी कंप्लेनेंट नुमान यूसुफ हैं। ताहिर शहजाद 5 मुकदमात में मुद्दई हैं, उनके 13 विक्टिम्स हैं। होंगे, देखिए ना, सर 2, 3, 4, 6 FIRs दर्ज की हुई है इन्होंने। सर 2-2 वाले और 1-1 वाले मैं पढ़ ही नहीं रहा, मैं सिर्फ जो 6, 5, 4 वाले हैं मैं वो पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो इनका आपस में क्या कनेक्शन है? चले आप शहजाद। सर मैंने ये पॉइंट मेक करना है, 14 लोग 55 FIRs में मुद्दई हैं और उन 55 FIRs में 170 विक्टिम्स हैं। 14 persons complainants in 55 FIRs। ये जब हमने पिटिशन फाइल की है तब का रिकॉर्ड है ये। How many complainants with how many victims? 170 victims. I don't know victims, I will call them accused for now. Sir. With 117? 170 accused. और इन 14 कंप्लेनेंट्स में से 14 कंप्लेनेंट्स में से लामुहाला 5-6 लोग तो आपस में कनेक्ट होते बाय वर्च्यू ऑफ दीज रिपोर्ट्स और शवाहिद से कनेक्ट होते हुए नजर आते हैं। दीगर की भी अगर जांच होगी तो उनका नेक्सस भी इस्टेब्लिश होगा। वो कौन से लोग हैं? सर उमर नवाज, शिराज अहमद फारूकी। नंबर्स मुझे बता देना। नंबर 1, 2, 3। सीरियल नंबर्स 1, 2, 3। देन सीरियल नंबर 8 पे मैंने सबसे पहले जब अपने दलाइल शुरू किए, वकील साहब का नाम जो उनका नाम रखते हैं, जो कभी लाइबा हैं कभी सारा क्वीन हैं। हाँ, सर इनको मैं नहीं भूलूंगा सर। अच्छा, आगे चलिए। तो खातून आवाज में भी फोन करते थे सर। एग्जैक्टली। और जनाना आवाज। हाँ, इसी के 3rd पेज पे 1, 2, 3, 8 एंड सर ये इन रिपोर्ट्स में सईद गनी का भी नाम आया हुआ है जो पेज सॉरी सीरियल नंबर 5 पे है। हसनात फारूक का भी नाम आया है पेज। आपको मैंने कहा है नाम मत लें सर। 1 सारे आप 8 तक लिख लें, 1 to 8। ये वो लोग हैं जिनका इन रिपोर्ट्स में नाम है।
नहीं, आप इसको क्या कह रहे हैं कि ये दे आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. They are in connection and they are part of this blasphemy business group. देखिए, एक चीज़ समझ आ गई कि एडमिटेडली इनमें से एक साहब जो हैं वो दूसरे साहब के मुंशी थे. Sir, राइट, दिस इज़ नॉट डिनाइबल. sir. नॉट इज इट डिनाइड. लेकिन 1 to 8 का और आपस में क्या कनेक्शन निकलता है? एक और साहब के बारे में उसी रिपोर्ट ने कहा कि वो उसी वकील साहब के एसोसिएट हैं, क्लोज एसोसिएट. एक और साहब कंप्लेनेंट के बारे में उसी रिपोर्ट ने कहा कि वो उन वकील साहब के ड्राइवर हैं. अच्छा, ये 63 तो ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के हो गए. सर, अब लाहौर का देखते हैं. लाहौर में सर नंबर 1 पे जो हैं कंप्लेनेंट वो 6 मुकदमात में मदई हैं. जी. नंबर 2 पे जो कंप्लेनेंट हैं वो 5 मुकदमात में. और इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है? सर बिल्कुल है, इनका रिपोर्ट्स में जिक्र है. जो नंबर 4 पे लिखे हुए हैं आप नाम पढ़ लें सर, उनका भी रिपोर्ट में नाम है. विद द इस्लामाबाद लॉट. सर रिपोर्ट तो एक ही है ना, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट एक ही है. ठीक, ओके. अगर माय लॉर्ड कहते हैं तो मैं दोबारा उन जो वर्नैकुलर वर्जन ऑफ द रिपोर्ट है उसमें तफसीलन इनके नाम दिए गए हैं. जो बॉटम से 1 2 3 4 5 6 5 लाइन पे, अगर जनाब इजाज़त दें तो मैं नाम पढ़ लूँ इनके. सर नहीं, ये तमाम लोगों के नाम यहाँ पे मेंशन है सर रिपोर्ट में. आगे चलो. Sir. I see where you coming from. आगे चलो. Sir, so precisely I am making the submission that there are 14 people who are complainant in 55 criminal cases, and in those criminal cases there are 170 people are the victim. Well, I don't know if they are all victims. Yes, They could. there is a possibility, और हम इस चीज़ को deny नहीं करते, but there is a possibility, sir. Now, my lord, the second very important question which was asked by this court from the petitioner side, that why not a joint investigation team and why a commission of inquiry? Joint investigation team के ऊपर तो respondent भी willing हैं कि जनाब तश्कील दे दी जाए. I don't know किस तरह का उन्हें comfort है उसमें, जो उन्हें कमीशन में मुयस्सर नहीं है. तो मैं जनाब के सामने ये दलाइल रखूँगा कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले के ऊपर तश्कील दी ही नहीं जा सकती. Firstly, my lord, by virtue of the section 30 of the Prevention of Electronic Crimes Act, Section 30. Section 30. ठीक. A joint investigation team could be constituted only for a particular criminal case. Whereas यहाँ मामला है across the country सैकड़ों मुकदमात का, जो गालिबन 200 से ज़ायद मुकदमात हैं. 75 FIRs तो मैंने अपनी पिटिशन के साथ लगाई हुई हैं. यहाँ मामला है उन अदालती कार्रवाइयों का जिनके ट्रांसपेरेंट होने पे डाउट है, ट्रायल कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स का जहाँ पे ड्यू प्रोसेस को वायलेट किया गया है. सर वो केस. सर ये आई वुड लीव दिस टू असिस्ट दिस कोर्ट बाय माय 2 ऑफ द कोलीग्स. वो ट्रायल्स में अपीयर हो रहे हैं और जनाब को बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या किस तरह से उस ट्रायल प्रोसीडिंग को प्रेजुडिस करने की कोशिश की जाती है. देखिए, ये तो अब ट्रायल रियाल में चले गए हैं. अभी तक ये केस यही तक था कि the registration of criminal cases is being orchestrated, sir, in a planned manner, sir, in order to for these ends. sir. अभी आप स्पेसिफिक ट्रायल के रियाल में कहा. मैं सर अभी इसमें ये अपनी वेहिमेंट एक ग्राउंड लूँगा
कि जिस तरह से ये फैब्रिकेटेड केसेस दर्ज किए गए, उसी तरह से अदालती कार्रवाइयाँ जिनमें ट्रायल्स इन मुकदमात की बाबत कंडक्ट किया जा रहा है, वो those are the one-way proceedings. The prosecution and the complainant side is just holding the whole proceeding, and whereas the defense side and defense counsel, they are not even being allowed to make their cases, to establish their grounds, to present their evidence in a manner which has been prescribed by the law. आप हाई कोर्ट में रिट में आ जाते। सर बहुत सारे केसेस में है, मैं जनाब के सामने वो रिट का फैसला भी रखूंगा जहां पे इस बुनियाद के ऊपर एफआईआर की प्रोसीडिंग्स को रोक दिया गया। मतलब जहाँ पे भी देखिए ना, ये तो इसका फैक्ट, इसका किसी गैंग से, किसी मेंबर से कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का। सर ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये सवाल है, मैं अपनी हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि एक डिफेंस काउंसिल को मौका नहीं दिया रही ट्रायल कोर्ट, आप अगले दिन यहाँ पे रिट में आएंगे तो कोर्ट जो है वो उसको क्लैरिफाई कर देगी। बिल्कुल ऐसा ही है सर। ये कैसे हो सकता है कि ये बट ट्रायल कोर्ट में बहुत सारी ऐसी प्रोसीडिंग। अभी हम सर डाइग्रेस कर रहे हैं, प्लीज सर, कम बैक टू द पॉइंट सर, यू वर आर्ग्यूइंग। JIT माय फर्स्ट पॉइंट इज कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम एक पर्टिकुलर क्रिमिनल केस पे तश्कील दी जा सकती है, इस मामले पे नहीं जहाँ पे मुल्क के तूलो अर्ज में सैकड़ों मुकदमात दर्ज हुए हैं इन्हीं दफात के तहत, और जिनमें एलिजिडली एक ग्रो ऑपरेट कर रहा है। दूसरी मेरी उसमें इस्तदा है कि ये मामला है इस मुल्क के बाकी सूबों में भी अगर कुछ हो रहा है तो उसमें भी आप कह रहे हैं कि फलां गैंग जो है वो उसमें प्रोएक्टिव है। ये सर बिल्कुल ये रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं। आगे चलो। दूसरा इसमें सर इसमें मेरी गुजारिश है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कुड ओनली बी कॉम्प्राइज्ड अपॉन द सर्विंग ऑफिसर ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। मैं सेक्शन 30 जनाब के सामने पढ़ देता हूँ। हमने पढ़ा था अदालत में। ना उसमें एज बाय लॉर्ड्स observation while providing the guideline to the federal government by virtue of the order 31st of January this year, जनाब ने ये गाइडलाइन दी थी कि उस मामले को जुडिशियसली देखना ज़रूरी है, इसलिए एक रिटायर्ड जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसका मेंबर हो, उसको फॉरेंसिक और डिजिटल एविडेंस को परखने के लिए एक IT का एक्सपर्ट उसका मेंबर हो, एक रिलीजियस स्कॉलर ऑफ इंटेग्रिटी उसका मेंबर हो ताकि वो रिलीजियस एंगल से उसको देख सके, और एक हायर रैंक्ड सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो जो इन्वेस्टिगेशन के एंगल से उसे देख सके। जबकि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के सर्विंग ऑफिशियल के ऊपर मुहित हो सकती है, वो इन तमाम बातों का, इन तमाम एंगल्स का अहाता नहीं कर सकती। माई थर्ड सबमिशन इज, हमारे मुल्क में इन ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दो लॉ इन्फोर्समेंट मौजूद हैं। द फर्स्ट इज पुलिस, द सेकंड इज फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और दोनों ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बिलवास्ता बिला वास्ता इस मामले में मुलव्वस हैं। एक ने रिपोर्ट, अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की, थोड़ा सा ख्याल कीजिए, दोनों एजेंसी मुलव्वस नहीं है, उनके कुछ, आपके बकौल उनके कुछ ऑफिसर्स मुलव्वस। सर ये थोड़ा सा ख्याल करें सर। मैं अपना आर्ग्यूमेंट इस तरह से कर लेता हूँ, बिलवास्ता या बिला वास्ता पुलिस और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कुछ अफसरान इसमें मुलव्वस हैं, लिहाजा ये दोनों ही इस मामले की जांच का हिस्सा नहीं बन सकते। जी प्लीज कैरी ऑन सर। माय लॉर्ड, दो, एक तो फॉर्मर DGFIA रहमान मलिक साहब का एक आर्टिकल है जो 29 जुलाई 2017 को द न्यूज़ में पब्लिश हुआ,
विद काइंड परमिशन ऑफ द कोर्ट वो मैं पढ़ना चाहूँगा। और वो JIT और कमीशन के क़याम के ऊपर तमाम आर्टिकल है सर। ये उन्होंने खुद लिखा है सर? उन्होंने खुद लिखा है सर दी न्यूज़ तो यही कहता है सर, खुद लिखा है। इसका टाइटल है शुड JIT बी एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, 29 जुलाई 2017 सर। I have served my country in different administrative and constitutional posts for more than 40 years, and what I have learned is put beautifully by famous social scientists that when it comes to privacy and accountability, people always demand the former for themselves and later for others. Our people are no different than the rest of the world when it comes to accountability for their actions. We as nation follow the same above. While being a member of the Federal Investigation Agency, I have been involved in सारी पढ़ेंगे आप? सर 2 मिनट लगने हैं सर। नहीं वो आप मुझे उसका रेलेवेंट पॉइंट बताएं जो मैं वो पढ़ लूँगा। पूरी पढ़ने में तो आपको आधा घंटा लग जाएगा। बताएं मुझे वो क्या इसमें किस पार्ट का जिक्र कर रहे हैं आप? सर उनका इस आर्टिकल में क्रक्स ऑफ द डिस्कशन ये है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो कभी अपने मंतकी अंजाम पे नहीं पहुंची। वो कहते हैं जी कमीशन भी कभी अपने मंतकी अंजाम को नहीं। एट द सेम टाइम वो कहते हैं कमीशन अपने मंतकी अंजाम पर पहुंचता है लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी सामने नहीं लाई गई। वो देखते हैं क्या होता है इससे। कोई देखिए, योर आर्ग्यूमेंट इन एसेंस इज that the nature of exercise to be carried out in this case necessitates a mix of prudent minds, mix of prudent minds, expertise in full public eye. Exactly. Whereas it is not possible, none of these is possible with the JIT. This is your argument. Exactly, sir. बस ये सर अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, दिस इज एन ऑफिस ऑर्डर ऑफ द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डेटेड 21 मई 2019। It has been learned through reliable sources that some of the officials of the cybercrime have knitted an unholy net in connivance of professional women to trap innocent citizens and after trapping them blackmail them, which earn a bad name for the department. All it is highly condemnable and simply unaffordable. It has further learned that complainants send illegal material, videos, pictures to the accused person. Then FIA cybercrime officers recover the same material from the accused person and registered case against the accused without determining the fact that whether the accused blackmailed the complainant or sent the material to the complainant or any other person for blackmailing. All officials are directed not to indulge in any illegal activities, and if any official found involved in any illegal activity, strict criminal departmental action will be taken against the culprit. In failure, no raid will be conducted and no FIR will be, in future, no raid will be conducted and no FIR will be registered without my prior approval. अब ये FIA का अपना ऑफिस ऑर्डर है अपने अफसरान के बारे में, जो कहता है कि हमारे महकमे के अफसरान एक अनहोली नेट में जुड़े हुए हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ लोगों को ट्रैप करने के लिए। उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि खबरें में मिली हैं रिलायबल सोर्सेस। तो और फिर ये कहा है कि जी अब इसके बाद कोई FIR आप रजिस्टर नहीं करेंगे। सर ये डायरेक्टर लीगल साहब ये बताएंगे सर कि पहली बात तो ये आप यूँ कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा जो ऑर्डर होता है ना, मिस्टर उस्मान continued with his submissions. Today he produced an office order dated 21st of May 2019, whereby the circle in charge
FIA Lahore passed an office order that no FIRs were to be registered without his prior approval because of information learned by him through quotation marks में reliable sources that some of the officers in FIA had quotation marks में knitted an unholy net quotation marks closed and mentioning that entrapment was being carried out. The learned director है ना सर आप? यस सर। The learned director legal FIA present in court. साइबर क्राइम सर, NCC है ये सर। नो सर, NCC है ये सर। तो FIA और NCC अभी एक नहीं है क्या? नो सर, हमारा DG NCC एक अलग है सर और FIA का अलग है, 4 से अलग हो चुका है सर। अच्छा, फिर ये मैं किससे पूछूं कि आप इस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी मुझे चेक करें? ये सर हमारा हेडक्वार्टर था, साइबर क्राइम एक विंग था FIA का सर। यही लोग थे जो साइबर क्राइम में थे। हेडक्वार्टर से सर ये इशू होता था, हेडक्वार्टर वाले ही बता सकते हैं कि ये ओरिजिनल है लेटर या नहीं है सर। He is directed to find out and he is directed to revert on this letter, and in order for this court to ascertain as to why, as to whether that office order was implemented in letter and spirit. If he is unable to ascertain himself, he'll let the court know, in which case the court may then pass appropriate orders to the relevant higher officials to apprise the court in the matter. ठीक है जी, आप इनको इसकी एक कॉपी दे देंगे? जी बिल्कुल सर। हाँ जी, कॉपी दे दें सर, चेक करवा देता हूँ मैं सर। इसकी कॉपी ले लीजिए सर। ये वाली ले लें। जी जनाब। और सर तशरीफ रखें आप। सर सर Secondly, my lord, by virtue of this office order, मेरी इस अदालत से इस्तदा होगी कि कमीशन की तश्कील देते वक्त जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए जाएं और जो दुरानिया उसमें मुतय्यन किया जाए कि कब से लेके कब तक के मामलात की मुकदमात की जांच करनी है, तो उसका दुरानिया इस लेटर की डेट से और उसके पहले से शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये FIA खुद कह रहा है। Now, my lord, the malafide on part of the investigating agency. उस्मान साहब बाकी कर। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं देख रहा हूँ सर कि ये हमारा सर सर्कल है, हमारे 15 सर्कल हैं पूरे पाकिस्तान में। ये डिप्टी डायरेक्टर लाहौर सर्कल का वन ऑफ देम है सर। ये हेडक्वार्टर से कोई सुनी हुई चीज़ सर ना, एक अपने तौर पे उसने एज ए इंचार्ज अगर कोई उसे कंप्लेंट लाहौर की आई है सर, तो उसने इंडिविजुअली डायरेक्शन दी है अपने लोगों को सर ना, सर्कल इंचार्ज ने सर। हेडक्वार्टर का लेटर नहीं है सर ना, जैसे FIA को हम कहें जी पूरा हेडक्वार्टर से हम गाइडलाइन जारी करते हैं सर, लेटर जारी करते हैं। ये टू द एक्सटेंट ऑफ लाहौर तक है सर, एक सर्कल में ही अगर एक अफसर मौजूद है जिसने सर जरूरत की है सर, उसने अपने कॉलीग्स या अपने जूनियर्स को कहा है कि भाई मुझे खबरें मिल रही हैं, बिल्कुल सर, से मेरे से पूछ के FIR करोगे। बड़ा अच्छा सारा लेटर उन्होंने कहा है सर उनको, अच्छा ये उसका ऐसा इक़दाम है सर कि ये फिर बाद में ये देखिए व्हाट वाज द स्पाइक पीरियड ऑफ द FIRs, द रियल सर 23 सर 23 मेन है सर ना। 19 में तो सर 19 में तो सर 15-20 FIR हुई थी सर सिर्फ। ये पीक जो है 23। अगर सर मैं सर खुद 2.5 साल से यही कर रहा हूँ सर ना, इसको ही ना साइबर क्राइम का और ब्लास्फेमी केसेस। और पिंडी में उमर नवाज केस था, इनको भी पता है 2 साल चला है।
ऑनरेबल हाई कोर्ट पिंडी बेंच में सर। ये पीक है 2023 और 24 सर। पहले तो एफआईआर नहीं थी, जिस पर ये लेटर निकला सर, 14 एफआईआर थी सर। सर वैसे तो जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहती हैं कि आफ्टर द लेजिस्लेशन ऑफ द पीका एफआईए के अंदर इन मुकदमात के अंदराज में बहुत तेज़ी से उनकी तादाद बढ़ी है। बट पीका ने सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट ही की हल क्या किया है? नथिंग सर। जुबान बंद की है, लोगों को बंद किया है, रियासत को। उसको छोड़ते हुए मुझे तो, मैंने जब से मैं ये जज क्या उससे पहले भी एज ए लॉयर जब काम कर रहे थे, मुझे पीका का एक फ़ायदा कभी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में नज़र नहीं आया जहाँ से कोई इफेक्टिव नतीजा निकला हो, या पुलिस और या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए विदाउट पीका वो काम नहीं कर सकते थे एज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो पीका का होना ज़रूरी था। आई डोंट नो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो पीका के बगैर आप नहीं कर सकते थे एज एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। सर देखें, एफआईए का एक्ट 1974 का सर एक्ट है और रूल 2002 के हैं सर उसके ना, तो ज़ाहिर है सर अब जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है। जस्ट आउट ऑफ कीन इंटरेस्ट बिकॉज एवरी फ्यू ये पीका इज नाउ बिगिनिंग टू अपीयर एज समथिंग व्हिच एज एजेंसी भी हो सकता था सर। इनसे सवाल ये करना चाहिए कि वो कौन सा काम था एज एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी व्हिच विद इन द एग्जिस्टिंग पावर्स दैट यू हैड यू कुड नॉट डू विदाउट पीका लेजिस्लेशन अगर जगह पे होती। एवरीथिंग इज डू सर विदाउट पीका हो सकता था सर, हो सकता था। हाँ एजेंसी में भी हो सकता था सर। पीका ने क्या वैल्यू एडेड की है? सर इनसे सवाल ये करना चाहिए कि पीका के आने के बाद भी आपने पीपीसी के ही मुकदमात दर्ज करने थे, तो पीपीसी तो पहले ही मौजूद थी। मुझे तो कोई उसका आज तक समझ नहीं आई। एज ए लॉयर भी जब हम प्रैक्टिस करते थे वो सिर्फ मोस्टली जब भी कोई आता था वो मसला ही लेके आता था कि जी ये केस इस तरह से हो गया है पीका के तहत। एंड माय लॉर्ड विल ऑब्जर्व, हर केस में एक स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट होती है। एक फ़र्द कहता है कि रियासत के बारे में बात की है, मेरे एहसास मजरूह हो गए हैं। रिलीजन के बारे में बात की है, मेरे एहसास मजरूह हो गए हैं। किसी फ़र्द के बारे में, किसी ओहदेदार के बारे में, किसी हुकूमत के ओहदेदार के बारे में बात की है, मेरे एहसास मजरूह हो गए हैं। पीका के तहत दर्ज होने वाली हर एफआईआर में यही मतन होता है सर। सर मैं एक गुजारिश कर दूँ, 2016 में पीका बना, उसमें इनिशियली पीपीसी वाली ये ऑफेंसेस एडेड नहीं थे। ये बाद में फिर मैंने लास्ट डे पे भी गुजारिश की थी कि एक इसी तरह केस चला, जज साहब ने टेकअप किया, पिटीशन आई एक सलमान शाहिद वर्सेस एफओपी सर कि जी सोशल मीडिया पे ये बहुत काम हो रहा है। वो पीएलडी 2017 इस्लामाबाद 218 रिपोर्ट हुई, उसमें उन्होंने डायरेक्शन दी गवर्नमेंट को कि एक तो आप इन पीपीसी वालों को पीका में ऐड करें। ये पीपीसी 295A-BC वो तो उसमें ऐड नहीं कर सकते थे सर, वो शेड्यूल ऑफेंस हो गए थे। उन्होंने मैं आपको छोटा सा बैकग्राउंड बता दूँ तमोली साहब, ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट हो रहा था, उससे भी पुराना है, मैंने 2002 में सर 2002 में था सर। मैं भी उस टीम का मेंबर था जो कि इंडस्ट्री की तरफ से जो इनपुट दे रहे थे। हमारी मीटिंग्स होती नहीं, डिस्कशंस होती नहीं, और मेरा स्टांस ये था कि जी आप मुझे एक